Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study preventive health programs of central government. Now start the lecture and understand what is health program. See, a health program refers to a program or a scheme that is launched or implemented to eradicate particular disease and to provide specific health services. And health programs are important to improve the health of a particular country. और in the previous lecture I have told you that कि जो health है वो किसी भी country के economic development के लिए important होता है. The health programs can be categorized as curative health programs and preventive health programs. In the previous lecture we have studied the health programs, curative health programs of central government, right? So if you have not watched that video, then सबसे पहले आप उस लेक्चर को जो है वॉच करें, राइट? और उसमें जो क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको स्टडी करें. देन फोकस दिस लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स, राइट? So what are the preventive health programs? See, preventive health programs refer to such programs that provide health services for the prevention in advance to prevent the person from getting sick, right? जैसे क्या हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएगा, राइट? तो अगर हम किसी भी पर्सन को वैक्सीन अवेलेबल करा देते हैं तो वह जो है किसी भी डिसीज से क्या होता है, सिक्योर हो जाता है या प्रोटेक्ट हो जाता है. सो दीज रिफर्स, राइट, दीज programs refer to such programs that provide health services for prevention in advance to prevent the person from getting sick, so that the person does not get sick as well as diseases are not transmitted, right? For an example, first is National Health Mission, right? अब National जो Health Mission है, it was launched in rural areas in 2005. Then in 2013 it was launched in urban areas. So National Health Mission has two components, right? National Rural Health Mission, then National Urban Health Mission, then National Health Insurance Scheme, then National Ayush Mission, Maternity Safety Scheme, Jeevan Bharti Women's Security Scheme, Maternal Health Program, then Janani Sishu Suraksha Karyakram, then Janani Express Scheme, Integrated Child Development Services, then Family Planning Insurance Scheme, then Family Welfare Program, Mission इंद्रधनुष, ये क्या है, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है. साथ ही साथ क्या हो जाएगा, बाल शक्ति योजना, देन आशा, अपॉइंटमेंट ऑफ आशा, देन प्रसव सहायक योजना एंड प्राइम मिनिस्टर्स सेफ मदरहुड कैंपेन, जिसको क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना. देन अटल वाल मिशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, जिसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है. देन अटल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, मिशन हो जाएगा, जिसमें जो चाइल्ड हैं उनको न्यूट्रियस फूड अवेलेबल कराया जाता है. वंदे मातरम स्कीम, राइट, हेल्थ होम स्कीम, देन इंदिरा गांधी मैटरनिटी सपोर्ट स्कीम या इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना, जिसमें जो लेबर होते हैं, राइट, लेबरर्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट जो है अवेलेबल कराया जाता है. देन नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हो जाएगा. हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी इंडिया कैंपेन हो जाएगा या प्रोग्राम हो जाएगा, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, एंड मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ, राइट? सो वी विल स्टडी दीज प्रोग्राम्स वन बाय वन, राइट? इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट कि हम ये जो जितने भी प्रोग्राम हैं ये कब लॉन्च हुए हैं. सो वी हैव टू कीप इन द माइंड द लॉन्च डेट ऑफ दीज प्रोवाइड्स, आल्सो हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीज प्रोग्राम्स एंड which facilities are made available through these programs. इन 3 फैक्टर्स को यदि हमने अच्छे से याद कर लिया, so we would cover these programs, right? इनके नंबर्स ज़्यादा हैं, but when you would revise 1 or 2 time, definitely you would come to know कि कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, कौन उसके बेनिफिशरीज हैं, ऑल्सो कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल कराई जाती हैं.
सो लेट्स स्टडी नेशनल हेल्थ मिशन। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इट वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ फैसिलिटीज़ को, राइट, इफ यू गेट health facilities in private sector then obviously you would have to pay for it, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉस्टली भी होता है। इसीलिए इस प्रोग्राम के तहत जो है हेल्थ केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जहाँ पर आप जो है क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर को जो है अवेलेबल कर पाएंगे, राइट। सो सिंपली this national health mission was started to provide affordable and quality health services to rural areas as well as urban areas, right? Now there are two components of it. The national rural health mission जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था, right? और इसके जो भी बेनिफिट थे उनको देखते हुए इसको अर्बन एरियाज में 2013 में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, राइट। सो नाउ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये कब लॉन्च हुआ है, राइट, तो 12 अप्रैल 2005 को, बट इसको इनिशियली 7 ईयर के लिए ही लॉन्च किया गया था, राइट। और फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसको 2020 तक जो है कवर किया जाएगा, राइट। और 2020 में कोरोना जो है, कोरोना पेंडेमिक था, इस वजह से अभी ये कंटिन्यू होगा या क्या होगा इसकी जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वी डू नॉट हैव। सो ये जो है तीनों के तीनों आपको जो है एमसीक्यूज के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कब लॉन्च हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को, राइट। कितने ईयर के लिए लॉन्च हुआ था, तो इनिशियली 7 ईयर के लिए लॉन्च हुआ था, राइट। कब तक कंटिन्यू होगा, 2020 तक कंटिन्यू होगा। सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 12th अप्रैल इन 2005 इनिशियली फॉर 7 ईयर, बट ये 2020 तक जो है कंटिन्यू किया गया है, राइट। किसके द्वारा रन किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मेजर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसको रन किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फैसिलिटीज, राइट। सेंट्रलाइज फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमने स्टेट में, जो स्टेट कैपिटल है उसमें एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश कर दिया जिसमें देयर आर 1000 बेड्स और जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, बट एवरीबडी कैन नॉट गो टू कैपिटल टू टेक द ट्रीटमेंट। देयरफॉर इन डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है उसमें जो है रूरल एरियाज में जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, राइट, उनको इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि लोकली उन सर्विसेज को जो है एक्वायर कर सके, राइट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज टू डेवलप अ कम्युनिटी ओन्ड डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम। ऑल्सो इसमें कुछ गोल्स को भी क्या किया गया था, सेट किया गया था, जिनको हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में स्टडी किया था, राइट। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग डाउन द MMR और मदर मोर्टेलिटी रेट, राइट, 1 to 1000, राइट। या हम कह सकते हैं कि ये 100 to क्या हो जाएगा, 1 लाख पीपल हो जाएगा, राइट। ऑल्सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 to 1000 लाइव बर्थ, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इसको कितना रखा गया था, 28। ऑल्सो अचीव टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1, राइट। देखिए, also the national rural health mission is concerned with providing all facilities at one place, right। और जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ऑल फैसिलिटीज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस हो जाएगा, मलेरिया, कालाजार, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी के इराडिकेशन के लिए हेल्थ फैसिलिटीज। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि द आशा, राइट, आशा वर्कर वुड बी अपॉइंटेड ओवर 1000 रूरल पॉपुलेशन, और जो आशा वर्कर है ये IMR और MMR को रिड्यूस कराने में एज वेल एज जो भी हेल्थ फैसिलिटी हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी सर्विसेज हैं
ऑल्सो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जैसे ही कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जो आशा वर्कर है वो उस लेडी को बिफोर या एंटीनेटल और जो है एंटीनेटल फैसिलिटीज भी में हेल्प करती है, राइट। वैक्सीन अवेलेबल कराना बच्चों के लिए, राइट, तो वैक्सीनेशन अवेलेबल कराना। ऑल्सो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए क्या करती है, लोगों को प्रमोट करती है और अवेयर करती है। एंड दिस हैज़ बीन implemented in 18 states with very low indicators of health infrastructure। तो ये 18 states कौन कौन से हैं? The first is अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, then झारखंड, then जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, राइट, त्रिपुरा एंड क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, राइट, एंड उत्तराखंड। अब इसके तहत कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगी। सो डिफरेंट जो फैसिलिटीज हैं और फंक्शंस हैं जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएंगे। द फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज थ्रू विलेज, राइट, इन द विलेज एरिया। सो प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज इन द विलेज एरिया बाय आशा वर्कर, और आशा वर्कर IMR MMR को रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ रूरल एरियाज में हेल्थ जो फैमिली प्लानिंग है और जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको अवेलेबल कराती है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हेल्थ सब सेंटर बिल्डिंग या हेल्थ केयर बिल्डिंग। तो रूरल एरियाज में जहाँ तक अभी भी कम्युनिटी हेल्थ केयर बिल्डिंग्स या प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्डिंग्स नहीं है, वहाँ पर इन बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ऑल्सो ANM को, right, ANM would be appointed over 1000 population, right। Also जो हेल्थ सब सेंटर हैं इनको नॉन आइटम्ड 10,000 का क्या किया जाएगा, फंड भी रिलीज किया जाएगा। सो दीज सब सेंटर वुड बी गिवन अ नॉन आइटमाइज्ड ग्रांट अमाउंट ऑफ 10,000, राइट। और ये जो 10,000 की ग्रांट होगी ये ANM की डिपॉजिट में, ANM के अकाउंट में डिपॉजिट होगी और इसको यूज किया जाएगा, राइट, विद विलेज हेल्थ कमेटी। तो विलेज हेल्थ कमेटी को किसी स्पेसिफिक सेक्टर में अगर उसको स्पेंड करना है तो उस 10,000 रुपीज को क्या किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा। ऑल्सो ये जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं यहाँ पर एसेंशियल मेडिसिन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा। ऑल्सो जो वर्किंग PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है उनको अपग्रेड किया जाएगा, राइट। सो दिस वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नाउ लेट्स स्टडी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राइट। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005 और जिससे हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए। देयरफॉर इन रूरल एरियाज के साथ साथ अर्बन एरियाज में भी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सके इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। सो दिस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अच्छा, एग्जाम में आप ये याद रखना कि अगर आपसे पूछा गया कि व्हेन वाज अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च्ड तो 2013। सो दिस NUHM वाज लॉन्च्ड ऑन May 2013 और इसके भी ऑब्जेक्टिव सेम है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन अर्बन एरियाज। और स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है या जो स्लम एरियाज में रहते हैं, तो सिटीज में जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है और स्लम एरियाज हैं उनकी हेल्थ नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस स्कीम के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं सो दैट जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो सके। also to improve the health awareness को क्या किया जाता है, जो है हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है। तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के सेलिएंट फीचर्स में पहला क्या हो जाएगा, नीड्स बेस्ड सिटी स्पेसिफिक अर्बन हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, विच मीन्स जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर
जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल कराया जाएगा। ऑल्सो वहाँ पर जो है हेल्थ केयर सेंटर्स को भी क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर जो है कम्युनिटी के साथ में पार्टनरशिप की जाएगी। तो पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, लोकल बॉडीज एंड एनजीओ एंड इन सब के कोऑर्डिनेशन से ही हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। ऑल्सो अर्बन एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान है वो क्या किया जाएगा, रेडी किया जाएगा। ऑल्सो अर्बन एरियाज में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी फंडिंग पैटर्न होगा 75-25, विच मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 75% और स्टेट गवर्नमेंट का 25%। बट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 90-10 रहेगा, विच मीन्स 90 सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 वो स्पेसिफिक स्टेट होगा। फॉर एन एग्जांपल असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो जाएगा। अब इस योजना में स्पेशली जो एम्स जैसे जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्टैब्लिश किया जाएगा, राइट। ये इसका ऑब्जेक्टिव, और ये कब लॉन्च हुई, 2016 में। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। सो दिस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना was approved in March 2016, and under this scheme, right, establishments of medical institutes like AIIMS in 3 phases। तो 3 phases में एम्स जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट को क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ जो एनोमलीज हैं इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल या रिलायबल हेल्थ सिस्टम उनको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ऑल्सो एक्सपेंड facilities to access quality medical education in the states। So this is प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। Then नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, राइट। अब ये ऑब्वियसली क्या है, ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ताकि इस इंश्योरेंस कवर के माध्यम से जो भी पर्सन है जिनको भी डिसीज हो जाती है उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जा सके। सो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2007, और इसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये केवल और केवल जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए है। तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को 2007 में लॉन्च किया गया है, ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसके बेनिफिशरीज कौन है, राइट, वर्कर्स हु वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको दिस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो जब कभी भी उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो वो उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का जो है बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना, ये बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो है बेनिफिशरीज होंगे, और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग वर्कर्स होंगे। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्या हो जाएगा, अभियान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किससे, डिलीवरी से, राइट। अगर किसी भी प्रेग्नेंट वीमेन की डिलीवरी रूरल एरियाज में, लोकल एरिया में होती है, सो देयर इज हाई चांसेस दैट कि बिकॉज ऑफ डिलीवरी कॉम्प्लेक्सिटी या प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्सिटी या बीपी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जो इन्फेंट है या जो मदर है उन दोनों में से दोनों की या किसी एक की डेथ हो सकती है। इसीलिए इस अभियान के तहत जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको जो है फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर नाम ही क्या लिखा है, सुरक्षित मातृत्व। अब आपको याद रखना है कि इसके तहत कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। सो अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल एंड प्रीनेटल केयर टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ। तो एवरी मंथ की जो 9th डेट होगी, राइट, 9th ऑफ फरवरी, 9th ऑफ जनवरी, राइट, तो एवरी मंथ की 9th को जो है, एवरी मंथ की 9th को जो जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको एंटीनेटल एंड प्रीनेटल जो केयर
कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल और जो प्रीनेटल केयर है वो सभी प्रेग्नेंट वुमेन को 9th ऑफ एवरी मंथ क्या होंगी, अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। एंड अंडर दिस कैंपेन pregnant women will be provided a minimum package of antenatal care services during second and third month, या जो जैसे ही क्या हो जाएगी प्रेगनेंस की 4th मंथ कंप्लीट होंगे तो सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ में जैसे कम्युनिटी केयर, हेल्थ केयर या PHC में जो है एंटीनेटल जो केयर सर्विसेज हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी, जिसमें एंटीनेटल जो चेकअप हैं वो क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो साथ ही साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर और जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल एंड प्रीनेटल केयर जो है वो अवेलेबल कराया जाएगा, सभी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में अवेलेबल कराया जाएगा, 9th ऑफ एवरी मंथ को अवेलेबल कराया जाएगा। और इसमें जो एंटीनेटल चेकअप सर्विसेज हैं जिसमें ब्लड टेस्ट हो जाएगा, सोनोग्राफी हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड हो जाएगा, ये सब जो है फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं सो दैट प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन का जो हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज हो और डिलीवरी के समय कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। देन क्या हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो दिस स्कीम अलोंग विद जननी एक्सप्रेस योजना, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज अ रिवोल्यूशनरी पॉलिसी। क्यों, उसका कारण क्या है कि देखिए रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती, उसके रीजन पीछे क्या होता है, एक तो क्या हो जाएगा, व्हीकल हो जाएगा, राइट, क्योंकि जो पर्सन होते हैं वो व्हीकल को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं होती है, एंड इफ दे एक्वायर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थ्रू प्राइवेट सेक्टर तो उनको 3000 to 4000 क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। ऑल्सो हॉस्पिटल में जो है एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो इसी वजह से पीपल प्रेफर टू हैव द चाइल्ड एट होम या उनका जो भी लोकल रेसिडेंस है वहाँ पर। और इसकी वजह से जब लोकल डिलीवरी होती है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से या अदर किसी रीजन की वजह से, राइट, या तो मदर की डेथ हो जाती है, इन्फेंट की डेथ हो जाती है, एंड दिस इज द रीजन फॉर हाई MMR और IMR इन इंडिया। देयरफॉर ये स्कीम लॉन्च की गई है और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि IMR और MMR को रिड्यूस किया जा सके। और ये कैसे पॉसिबल होगा, थ्रू क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देती है। तो सिंपली अगर हम कहें तो IMR, राइट, IMR और MMR को रिड्यूस करने के लिए ही 1 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड, राइट, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रिवेंट infant and mother mortality and promote institutional delivery, राइट। और इस स्कीम के तहत यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो रूरल एरियाज में 14,000, राइट, 14,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज का क्या दिया जाएगा, मैटरनिटी बोनस दिया जाएगा, सो दैट पीपल जो है वो अट्रैक्ट हो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, राइट। साथ ही साथ ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस से लॉन्च की जा रही है और वर्तमान समय में दिस हैज बीन द कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट। और ये जो बेनिफिट है ये कब के लिए दिया जाएगा, केवल और केवल फर्स्ट 2 लाइफ बर्थ्स के लिए ही जो है बेनिफिट दिया जाएगा। देन जननी शिशु सुरक्षा क्या हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद में अगर जो है लीव दे दी जाए तो बट ऑब्वियसली इससे भी जो है शिशु या इन्फेंट को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। इस वजह से इस पॉलिसी के थ्रू जो भी डिलीवरी हुई है उनको 3 डेज और 7 डेज के लिए जो है
3 डेज और 7 डेज का जो है केयर प्रोवाइड कराया जाता है, फूड अवेलेबल कराया जाता है, साथ ही साथ और भी अदर फैसिलिटीज जो है अवेलेबल कराई जाती है। तो प्रधानमंत्री शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 1 जून 2011, right? And the initial goal is to allow all pregnant women to have completely free delivery in public health institutions like primary health care center and district hospitals, and no costly delivery in case of operation, right? तो इस प्रोग्राम के तहत फ्री डिलीवरी को और जो है ऑपरेशन या सर्जरी होने पर जो है लो कॉस्ट डिलीवरी को क्या किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है, राइट? और दिस इंक्लूड्स फ्री मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल्स, राइट? फ्री फूड फॉर 3 डेज, राइट? तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी होने पर मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स जैसे फूड है या चेकअप है वो 3 डेज के लिए अवेलेबल कराया जाता है, और 7 डेज के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट? फॉर सिजेरियन जो डिलीवरी होती है उनके लिए 7 डेज की जो है फ्री मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स जो है अवेलेबल कराए जाते हैं। ऑल्सो फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल कराया जाता है ताकि IMR और MMR दोनों क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्कीम है जिसके माध्यम से ऑन वन हैंड माल न्यूट्रिशन को जो है माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से फाइट किया जाता है, ऑल्सो वैक्सीनेशन को इम्प्रूव किया जाता है। थर्ड, जो चिल्ड्रन है उनके हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेटर स्कीम है जिसको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें जो चिल्ड्रन है उनको रेडी टू ईट फूड अवेलेबल कराया जाता है। ऑल्सो फूड के साथ साथ उनको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं जिसमें वैक्सीनेशन हो जाएगा। ऑल्सो आंगनवाड़ी सेंटर में उनको एजुकेशन भी अवेलेबल कराया जाता है, राइट? तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पॉलिसी हो जाएगी। सो दिस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन 1975, बट इसको 1991 में क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। और इसके बेनिफिशरीज कौन है, राइट? तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6, राइट? सो 0 to 6 एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको साथ साथ 15 to 44 ईयर्स की जो वीमेन है वो बेनिफिशरीज है। ऑल्सो प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिक वीमेन, राइट? ये इनकी क्या होती है, बेनिफिशरीज होती हैं, राइट? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है टू क्रिएट अ प्रॉपर फाउंडेशन फॉर साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ऑल्सो जो आंगनबाड़ी सेंटर होता है वहाँ पर चाइल्ड को, मदर को कोई भी मॉर्बिलिटी होती है, मॉल न्यूट्रिशन होता है, राइट? या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, राइट? तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर एफर्ट्स किए जाते हैं। एंड इन दिस स्कीम, राइट, जो न्यूट्रिशन और वो भी कैसा, रेडी टू ईट जो फूड है वो अवेलेबल कराया जाता है। आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं उनमें प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, लैक्टेटिंग वीमेन के लिए, और जो माल न्यूराइड्स चिल्ड्रन है उनको रेडी टू ईट फूड जो है आंगनवाड़ी सेंटर से अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ जब कभी भी पॉसिबल हो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है तो इन्हीं आंगनवाड़ी सेंटर से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वह भी जो है इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ऑल्सो यहाँ पर जो है एजुकेशन भी अवेलेबल कराया जाता है। देन क्या हो जाएगा, पल्स पोलियो कैंपेन हो जाएगा, राइट? पोलियो इज अ डेंजरस डिसीज, राइट, जो कि लोअर ऑर्गन्स को, या हम एक तरीके से कह सकते हैं फीट को अफेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो पर्सन है, द पर्सन इज अनएबल टू वॉक, राइट? ये पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या है, डेंजरस प्रॉब्लम है, और इसको फाइट करने के लिए UN ने जो है एक रेजोल्यूशन निकाला था 1998 में, राइट? सो टू फाइट polio disease globally, World Health Organization released a resolution in 1988, and according to the resolution launched by World Health Organization in 1998, India में National Pulse Polio Immunization Program was launched in 1995। तो
तो पल्स पोलियो जो कैंपेन है वो कब लॉन्च किया गया है? 1995 में लॉन्च किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है पोलियो वैक्सीन को अवेलेबल कराना। एंड ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 वर एडमिनिस्टर्ड पोलियो वैक्सीन ट्वाइस एट अ डेजिग्नेटेड सेंटर्स। तो इनिशियली जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते थे वहां पर ट्वाइस जो है पोलियो वैक्सीन अवेलेबल कराई जाती थी। बट शक्तिमान से लेकर, शक्तिमान में भी जो पहले ऐड चलता था कि आज पोलियो वैक्सीनेशन का डे है, आप जो है छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, परंतु इसके बावजूद जब जो डेजिग्नेटेड प्लेस थे उन पर चिल्ड्रंस को नहीं लाया जा रहा था, तब 1999 से लेकर 2000 तक, राइट, जो जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स थे उनको डोर टू डोर भेजा गया टू हैव पोलियो वैक्सीन, राइट, और दिस वाज रिजल्टेड इन द सक्सेस, राइट। जो टाइप 2 पोलियो है वाज इरेडिकेट इन द ईयर 1909 और WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री अनाउंस कर दिया था 2013 में। तो इस तरीके से 3 डिसीजेज हो चुकी हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, राइट, 2017 में क्या हो जाएगा? कालाजार, राइट, 2017 में कालाजार, 2000 में क्या हो जाएगा? गिनी वर्म, राइट, एंड 2013 में क्या हो जाएगा? पोलियो। सो दीज डिसीजेज हैज बीन इरेडिकेटेड, राइट, फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वंदे मातरम स्कीम, राइट, तो ये भी मैटरनिटी बेनिफिट जो है स्कीम है। तो वंदे मातरम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2004 एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? अंडर दिस प्रोग्राम काउंसलिंग एंड हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड completely free of cost to women living below the poverty line before and after the birth of children on a fixed date on every month, right। दरअसल अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री, राइट, जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, राइट, तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है ये लेटर जाकर क्या हुआ? इंप्लीमेंट हुआ है। इसके समान ही जो फैसिलिटी है वो वंदे मातरम स्कीम के तहत जो है अवेलेबल कराई जाती है। तो वंदे मातरम स्कीम जो है 2004 को लॉन्च हुई थी एंड अंडर दिस प्रोग्राम जो एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल चेकअप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन वीमेन के लिए अवेलेबल कराया जाएगा ऑन अ फिक्स्ड डेट। ऑल्सो इसमें एक और स्पेशल फीचर है, दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स अंडर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा यह सर्विस अवेलेबल कराई जाती है। देन शिशु उत्तरजीविता एंड सुरक्षित मातृत्व क्या हो जाएगा? कार्यक्रम हो जाएगा, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है 1991 में ये लॉन्च हुआ था। तो ये भी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, राइट, और उसके बाद में जननी सुरक्षा जो योजना है उससे ही क्या है? मिलता जुलता है। So this प्रधानमंत्री उत्तरजीविता एंड सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम has been launched in 1991. The objective of this program is to provide maternal and child health services in the form of a package of overall needs of mothers as well as children related to health and diseases such as कैसा हो जाएगा? serious illnesses, right? So we have studied this सुरक्षित उत्तरजीविता एंड सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम। नेक्स्ट इज नेशनल मैटरनिटी क्या हो जाएगा? बेनिफिट स्कीम हो जाएगा। नाउ जो वर्तमान समय में तो अगर हम देखें तो एवरीबडी हु इज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, राइट, उसको तो मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, बट ये अर्लियर टाइम में ये बेनिफिट जो था वो अवेलेबल था ही नहीं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1990 के बाद से ही अवेयर आना शुरू हुआ था। तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है विच वाज लॉन्च्ड इन 1990, राइट। सो 1990 को ये लॉन्च हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस प्रोग्राम में सभी वीमेन को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया गया था, केवल और केवल पुअर, अर्बन और जो रूरल एरियाज, राइट। Under this scheme, women were given a lump sum assistance of only 500 rupees belonging to poor, urban, rural before the 8-12 weeks of the delivery,
राइट। नेक्स्ट इज लक्ष्य प्रोग्राम, विच मीन्स क्या हो जाएगा, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव हो जाएगा। इंडिया में कई ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पर जो लेबर रूम होता है वहां पर क्लीनिनेस, राइट, क्लीनिनेस या स्वच्छता बहुत ही क्या होती, कम होती है, राइट, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का क्या होता है, खतरा होता है। सो इफ देयर इज अ पॉल्यूशन और देयर इज अ लैक ऑफ हाइजीन, तो उसकी वजह से एमएमआर या आईएमआर जो है इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए जो लेबर रूम है उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सो लक्ष्य प्रोग्राम लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव was launched on March 24 in 2018 and this is operated by Ministry of Health and Family Welfare. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर एंड ऑब्स्ट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स ICU एंड हाई डिपेंडेंसी यूनिट HDU, राइट। और ये जो जितनी भी यूनिट लिखी है इनमें प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा, राइट। टाइम टू टाइम यहाँ पर क्या होगी, टाइम टू टाइम यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा, राइट, और बेटर इक्विपमेंट से इनकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। द लक्ष्य प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, राइट, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो लेबर रूम है उनको इंप्रूव किया जाएगा। देन हो जाएगा हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी इंडिया प्रोग्राम या स्वस्थ बच्चे स्वच्छ भारत अभियान, राइट, एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2017। क्योंकि जो चिल्ड्रन है अगर वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा। इसीलिए जो फिजिकल एक्टिविटी है या स्पोर्ट एक्टिविटी है वो इंप्रूव हो सके, इसके लिए हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। सो दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 22 अगस्त 2017 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोग्राम एम्स टू सेंसिटाइज टीचर्स एंड पेरेंट्स on the importance of good health and fitness as well as encourage children to play an hour every day। तो बच्चों को 1 घंटा खेलने के लिए प्रमोट किया जाए, राइट, टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा। Then let's study other efforts and establishment of Clinical Establishment Act 2010। तो जो अदर एफर्ट्स हैं उनमें से हमको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि सीधा ये MCQ पूछा जा सकता है कि व्हेन द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया, तो ये कब लॉन्च हुआ है, 2010 में। इसको क्यों लॉन्च किया गया, ताकि इंडिया में जो जितने भी स्मॉल और बिग हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो रजिस्टर हैं, राइट, रजिस्टर हो सके, साथ ही साथ वो पेशेंट्स को जो है हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल करा सके। सो दिस Clinical Establishment Act has been enacted or implemented in 2010, right? And under this, it will be necessary for every big or a small clinic, right, or medical establishment to get registration from the government, right? और यदि registration होगा तो but obviously, राइट, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन होगा तो बट ऑब्वियसली उसमें जो डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे, वो वेल एजुकेटेड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे, राइट। एक तरीके से अगर हम देखें तो लोकल लैंग्वेज में जिसको कहते हैं झोला छाप नहीं होंगे, विदाउट डिग्री नहीं होंगे। तो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस में मेडिकल जो जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड होंगे। ऑल्सो जो रजिस्टर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी को भी ट्रीटमेंट देने के लिए जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो नो हॉस्पिटल और क्लिनिक कैन रिफ्यूज टू ट्रीट अ पेशेंट हु नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, राइट। और ऑल्सो उनको अपने हॉस्पिटल में क्वालिटी एंड प्राइस को भी मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। वो कॉस्टली ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएंगे, साथ ही साथ जो प्राइसेस हैं लैब के वो भी उनको फिक्स करने पड़ेंगे, right? So in this way we have studied the preventive, right? We have studied the preventive health care, we have studied the preventive health programs of central government.
In the upcoming lecture, we will study the preventive as well as the curative health programs of Madhya Pradesh government. Right? So now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.